गाइस वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रैक एकेडमी। मेरा नाम है शुभम और आज मैं क्रैक एकेडमी के बिहाफ पे ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज़ है उसको शुरू करने वाला हूँ। गाइस इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी ज्योग्राफी के बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो भी आपकी एनसीईआरटीज में दिए हैं उसको हम डिटेल बाय डिटेल डिस्कस करें। ओके, सो दैट you can have a better clarity and better understanding with those concepts. Okay, so in this video series I am going to cover these following contents. So the first video will be based on Earth in the solar system. One by one I'll make a separate video on each chapter so that it will be comfortable for you to understand and which can strengthen your concepts. Okay, so मेरी कोशिश यही होगी कि आप पे लोड ना डालते हुए आपको वन बाय वन एक एक चैप्टर के साथ एनसीईआरटी को डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर होगा ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, जिसमें हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके सिग्निफिकेंस क्या है, उनको डिस्कस करेंगे। ओके, थर्ड विल बी मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है गाइज, इसमें हम बेसिक रोटेशन रेवोल्यूशन व्हाट आर दे, ठीक है, हाउ दे आर सिग्निफिकेंट, व्हाट हाउ दे अफेक्ट सीजन्स, in this chapter we will discuss all those things. Okay, after that I will come to the chapter of maps. This is very important chapter when it comes to geography. Okay, since it is a backbone of geography. Geography is all about maps. Okay, so in this chapter I am going to cover the types of maps, what is the purpose of maps, what are their different characteristics. Okay, so next will be major domains of the earth. ठीक है गाइज, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ से मेरा मतलब हो गया आपके डिफरेंट स्पेयर्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट वुड बी आवर कंट्री इंडिया। आई विल डिस्कस अबाउट द फिजियोग्राफी, द पॉलिटिकल डिविजन्स, द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, द एग्रीकल्चर सिस्टम, ओके, द पॉपुलेशन रिसोर्स बेस ऑफ इंडिया वन बाय वन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, it's a very important chapter and a lighter one also. Okay, so this is how our solar system appears. This is a model of a solar system. Okay, so guys, what do you mean by a solar system? So the very word solar has been derived from the Roman word sol. Okay, this has come from the Roman word sol, okay, which means sun. And the solar system means it is related to sun, it is family of the sun. Okay, so this is the basic definition of what solar system means. Okay, so a solar system is a collection of planets, moons, asteroids, comets, dust and gas that orbit our local star sun. Okay, always remember guys, sun is the pivot of our solar system. Okay, so this is one entity around which the whole solar system, the whole our galaxy revolves. Okay, so sun is the main component of our solar system, and along with that we have planets, moons, asteroids, comets, dust and gas that orbit our local star, the sun. Okay, next is the sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids. ठीक है, जितनी भी 8 planets, satellites और ये कुछ celestial bodies हैं, ये सभी सोलर सिस्टम का पार्ट हैं, राइट। अब बात आती है कि सोलर सिस्टम ओरिजिन कैसे हुआ, हाउ इट वाज ओरिजिनेटेड। गाइस, देयर आर वेरियस थ्योरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड इट इज स्टिल बीइंग अंडर रिसर्च. So the most relevant theory which you need to understand, I mean at a very surface level, is the Big Bang theory. Okay, I'm not talking about the Big Bang sitcom. It's a different thing. So what was Big Bang theory is all about?
what the theory called for. So there was once Belgian cosmologist. His name was George Lemaitre. His name was George Lemaitre. Okay. So he was basically a Belgian cosmologist who propounded the theory of Big Bang. Okay. He was a Belgian cosmologist. All right. So about 13.6 billion ago, it started with what? Big Bang started with a single entity. Okay. It started with a single, it originated from a point which kept on expanding as we see our solar system today. और उस सम धीरे 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 उस सोलर सिस्टम में कई सारे सोलर सिस्टम और भी थे एंड दे कीप ऑन एक्सपेंडिंग एंड दे स्टिल एक्सपेंडिंग एज वी टॉक. ओके. सो जो हमारा यूनिवर्स है वो कई सारी गैलेक्सी से बना हुआ है. ठीक है. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आर एक्सपेंडिंग. ठीक है. दे आर एक्सपेंडिंग एज वी टॉक. ठीक है. एंड स्टिल मेनी ऑफ द गैलेक्सीज आर अननोन टू अस. They are still being under research. Okay. And this is the most relevant theory which has been followed till now regarding to the origin of solar system. Okay. So now the next concept is celestial bodies. Okay. What are celestial bodies? जितने भी आपका सन, मून, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. सो द डेफिनेशन इज द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. ठीक है गाइज. अब इसमें दो तरह की सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं. कुछ जो अपनी हीट और एनर्जी एमिट करती हैं और कुछ दूसरे स्टार से वो डिराइव करती हैं, जैसे कि प्लैनेट्स. दे डोंट हैव देयर हीट एंड light of their own when they are compared with stars like sun, right? So the sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Now the next is the sun. So as I told you earlier that sun is the center of our solar system. Okay. The sun is the center of our solar system. It provides the force that binds the whole solar system. So you can understand how significant sun is. Okay? From the very this statement. Okay. Since this is the force that binds the whole solar system, it is the pivot around which the whole solar system rests upon. Okay. And the third point is it is also the largest object, which accounts for approximately 99.8% of solar system mass. All right, guys. So you can see how sun is significant in solar system. Okay. Next point is it is a hot raging ball of fire, right? Sun derives its nuclear energy from nuclear fusion, from the process of nuclear fusion. If somebody asks you what do you know how sun derives its energy, it is due to the process of nuclear fusion. Okay. That's why it is so hot, because the amount of heat which is released in nuclear fusion is very very high when in comparison to nuclear fission. Okay. And it is about 150 million kilometers away from the earth, right? So these are some basic facts about the sun. You just need to go through it 2-3 times and you will able to retain it. Next is the planets, right? जिनको हम
वॉन्डरर्स भी बोलते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स, the word planet is basically derived from a Greek word which is called plantea, right? And the literal meaning of the term plantea is wanderers. Some of you would like to, wander, explore life. They like riding, they will like driving, they want to explore the world. So you are kind of a planets, but you need to find your pivot, you need to find your purpose in life. Okay. The next characteristic is they don't have heat and light of their own. ठीक है, as I said earlier, planets की ना तो अपनी हीट होती है और ना ही उनकी लाइट होती है, unlike stars, right? So this very statement differs planets from the stars. Third point is a satellite is a celestial body. Okay. Now I am coming to the concept of satellite. What is a satellite? It is different from a planet, right? Just like planets revolve around the sun, in the same way satellites revolve around the planets. Okay. Just like जैसे कि जितने भी planets हैं वो sun के around revolve कर रहे हैं in the elliptical और elongated orbits. In the same way जो आपकी सैटेलाइट है वो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। एंड वन एग्जांपल इज मून. मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, राइट? इट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. नाउ व्हाट आर इनर प्लैनेट्स? ठीक है, कई बार कई सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर इनर planets, ठीक है, and these are Mercury, Venus, Earth, Mars, right? So these 4 planets are called inner planets. Sometimes they are also called as terrestrial planets. Why they are called as terrestrial planets? Because their surface is rocky, right? इनकी सरफेस जो है स्टेबल है, डेंस है, उनका एक रिजिड मास है, इसकी वजह से इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है. Unlike they are different from the outer planets which are Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ठीक है, तो आपके inner planets कौन से हो गए? Mercury, Venus, Earth and Mars. And when it comes to outer planets, these are Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Why these are called as outer planets? Right. First, पहली बात, इनकी जो सरफेस है, these are not rigid like द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. ये सब गैस जाइंट्स हैं, ठीक है. मोस्टली जो इनकी कंपोजिशन है वो गैस, जो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रीडोमिनेटिंग है, ठीक है. इसकी वजह से इनमें दे आर नॉट स्टेबल, अनलाइक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. दे डोंट हैव अ स्टेबल मास एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज जुपिटर लाइक प्लैनेट्स बिकॉज ऑफ देयर एनॉर्मस साइज in relation to the terrestrial planet, right? So this was all about planets. So there is one mnemonic which you can find in your NCERTs too. How you can remember, the planets as per their order in the solar system. So this is basically the order of the planets in our solar system. So the first is Mercury. ठीक है, सन के बिल्कुल जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी. मरकरी के बाद वीनस, ठीक है. So first planet is Mercury, then is Venus, the third is Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Pluto is no more a planet. It comes under the category of dwarf planet that we discuss later on in the coming slides. Okay, so the mnemonic to remember the order of the planets as they distance away from the sun is, my very efficient mother just served us nuts. Just remember this mnemonic and you're able to remember the order of the planets as they distances away from the sun, right?
सिर्फ इस मेमोनिक को याद रखो, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। एम से मर्क्यूरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नट्स। ओके, अब हर प्लैनेट के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपने कभी ना कभी पढ़े भी होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मरकरी की बात करते हैं। ठीक है, सो मरकरी इज क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। ठीक है, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ओके, इट इज द क्लोजेस्ट वन एंड द स्मॉलेस्ट वन, राइट। तो जो मरकरी है, it is closest planet to the sun and it is also what smallest planet in the solar system, right। इसका जो diameter है, it is about 4878 kilometers, so this is its diameter, ठीक है, not the radius। and by orbit I mean it takes about 88 days। orbit से मेरा मतलब है यहां पे कि कितना टाइम इसको सन के अराउंड रिवॉल्व होने में लगता है। ठीक है, तो इट टेक्स अबाउट 88 अर्थ डेज, राइट। एंड इट इज ऑल्सो अ फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट। ठीक है, अगला फैक्ट है कि इट मूव्स ऑन इट्स एक्सिस एंड इट टेक्स अबाउट 58.6 अर्थ डेज। ठीक है, अपनी एक्सिस पे इसको रोटेट करने के लिए कम से कम 58.6 अर्थ डेज लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मून्स। So Mercury has got no moons. Okay, so it has got 0 number of moons, right? So these are the facts which you need to remember about if a question comes on Mercury. Next is Venus. ठीक है, इसको हम बुध भी कहते हैं, सॉरी शुक्र भी कहते हैं। So Venus is Earth's solar system twin। ठीक है, ये अर्थ का ट्विन है बिकॉज ऑफ इट्स रिलेटिव साइज, बिकॉज इट्स सिमिलैरिटी, बिकॉज ऑफ इट्स साइज वेरी सिमिलर टू द अर्थ। ठीक है, इसीलिए इसको अर्थ सोलर सिस्टम ट्विन भी कहा जाता है। सो पहला फैक्ट जो इसके बारे में है कि इट इज सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, मरकरी के बाद वीनस एज पर द ऑर्डर। ठीक है, एंड इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, सो Venus is the second planet and it is the hottest planet in the solar system. Next fact is it is also the brightest planet in the solar system। ठीक है, ये सबसे ज्यादा brightest planet भी है और इसी की वजह से इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, and sometimes when the sky is clear Venus is visible, okay, with the naked eye, but it looks like a star only। Third is its thick atmosphere is extremely toxic। इसका वीनस का जो एटमॉस्फेयर है इट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक। ठीक है, एंड इट क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स कंपोजिशन। व्हाई? बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सो मेजॉरिटी जो वीनस की कंपोजिशन है इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट इज वीनस स्पिन स्लोली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये यहां पे चीज नोट करने वाली है कि अनलाइक अदर प्लैनेट्स ओनली वीनस एंड यूरेनस, ओके, सिर्फ वीनस और यूरेनस ही ऐसे प्लैनेट्स, दो प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। ठीक है, और जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। ठीक है, जो हमारी अर्थ है इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट। So its diameter is 12,104 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो डायमीटर है इट इज अराउंड 12,104 किलोमीटर। ठीक है, अब बात आती है ऑर्बिट कि ये कितना टाइम लेता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। ठीक है, सो इट टेक्स अबाउट 225 अर्थ डेज। ठीक है, इट टेक्स अबाउट 225 अर्थ डेज। नेक्स्ट इज रोटेशन में कितना टाइम लेता है? सो इट टेक्स अबाउट 241 अर्थ डेज टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, राइट। एंड जस्ट लाइक मर्करी इट ऑल्सो हैजंट गॉट नो मून्स। ठीक है, इसके भी कोई मून्स नहीं है।
वीनस के भी कोई मून्स एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट, द अर्थ, प्लैनेट फुल ऑफ लाइफ, द ओनली प्लैनेट जहां अभी तक लाइफ मिली गई। ठीक है, ऑल्दो मार्स पे भी साइंटिस्ट दे आर डूइंग रिसर्च कि वेदर लाइफ एग्जिस्ट नॉट, एंड देयर एग्जिस्ट सम एविडेंसेस जो पॉइंट आउट करते हैं कि यहां लाइफ हो सकती है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो नोन है वो सिर्फ अर्थ के बारे में है कि यहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वी हैव डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन आवर प्लैनेट। ठीक है, तो और बहुत सी आई थिंक वी नो ओनली 2% ऑफ द स्पीशीज विच एग्जिस्ट टूडे। ठीक है, सो वी वर टॉकिंग अबाउट अर्थ, so it is also called as blue planet. Why it is called as blue planet? Because 71% of its surface is covered with water. ठीक है, अर्थ का जो 71% जो एरिया है वो पानी ने कवर करके रखा हुआ है। आपको इस फोटो में भी दिख रहा होगा। ठीक है, यू कैन सी इन द फोटो जो मेजोरिटी ऑफ द एरिया है वो पानी या ओशंस ने कवर करके रखा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। ठीक है, अब इसके एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की बात करते हैं। तो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की अगर हम अर्थ की बात करें तो 78% इज नाइट्रोजन। ठीक है, 78% नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और 20% ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात आती है अर्थ की सैटेलाइट्स कितनी है। ठीक है, देखो दो तरह की सैटेलाइट्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सैटेलाइट जो है वो एक ऐसी सेलेशियल बॉडी है जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, दे रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। सो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि प्लैनेट्स जो हैं वो इनके पिवट हैं। ठीक है, सो दे रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स एंड मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ की बात करें, मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। आपने पीएसएलवी जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल्स के बारे में सुना होगा, आपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के बारे में सुना होगा, जिनको हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, सो all those satellites comes under the category of man-made satellites, and that's why they are called artificial satellites. ठीक है, so सैटेलाइट के बारे में अगर बात करें तो सैटेलाइट इज अ celestial body that revolves around a planet, right? And moon is the only natural satellite of the earth. It's a fact. ठीक है, अर्थ का डायमीटर कितना है? So Earth's diameter is 12,760. ठीक है, 12,760 is the diameter of the earth. ठीक है, and it takes about 365.24 days to complete its one revolution around the sun. अपनी एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए it takes about 365.24 days, right? Now what about rotation? So it takes about 23 hours 56 minutes, ठीक है, to rotate on its own axis. ठीक है, approximately 24 hours to rotate, to complete one rotation. Now comes the Mars, मंगल ग्रह जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड प्लैनेट। ठीक है, अब रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं इसे? रेड प्लैनेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी रॉक्स हैं उसमें आयरन ऑक्साइड्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, दे आर रिच इन आयरन ऑक्साइड्स, दैट्स व्हाई इट्स सरफेस अपीयर्स रेड टू अस। ठीक है, इसीलिए हम मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। ठीक है,
सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, सबसे पहला मर्करी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ एंड फोर्थ इज मार्स, मंगल ग्रह। ठीक है, सो मार्स हैज गॉट थिन एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर ड्रॉप्स टू -60 डिग्री सेल्सियस समटाइम्स। ठीक है, सो इट हैज गॉट थिन एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो इट्स एटमॉस्फेयर इज नॉट वेरी डेंस and its diameter is 4217 miles. These are facts, you can write them down. ठीक है, now coming to the days. ठीक है, जितना अर्थ को अपनी एक्सिस पे रोटेट करने पे लगता है उतना ही मार्स को भी रोटेट करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर। इट इज अबाउट 24 आवर्स 37 मिनट्स, राइट। सो अर्थ को कितना लगता था, 24 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, एंड मार्स टेक्स 24 आवर्स 37 मिनट्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, नंबर ऑफ मून्स की बात करते हैं अब हम। ठीक है, नंबर ऑफ मून्स की अगर हम बात करें तो मार्स हैज गॉट 2 मून्स। ठीक है, मार्स हैज गॉट 2 मून्स एंड व्हाट आर दे, दीज आर फोबोस एंड डेमोस। ठीक है, so earth got one natural satellite, one moon, that is called moon. Okay, mercury and venus has got no satellites, no moons. ठीक है, mars has got 2 moons which are called as phobos and deimos. ठीक है, so ये आप facts को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द जुपिटर, बृहस्पति जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने सोलर सिस्टम क्या है, ठीक है, सोलर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है, सोलर सिस्टम की कंपोजिशन क्या है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू व्हाट, जोवियन प्लैनेट्स, जिसको आप आउटर प्लैनेट्स भी कहते हो। ठीक है, और इनको जोवियन प्लैनेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी कंपोजिशन मोस्टली जुपिटर की तरह है जो गैसियस है। ठीक है, इट्स अ बॉल ऑफ गैसेस ओनली। ठीक है, इनका जो एटमॉस्फेयर या इनकी जो सरफेस है, दे आर नॉट रिजिड like terrestrial planets. Their surface is not rocky. That's why they are called as Jovian planets, and also due to their enormous size. ठीक है, and Jupiter is the largest planet in our solar system. ठीक है, so it is a gas giant made up of what, helium and hydrogen. ठीक है, so इसकी composition में जो mostly gases हैं वो है hydrogen and helium. It is 5th planet from the sun. Order wise it's 5th planet from the sun. Diameter की अगर हम बात करते हैं, so it has got a diameter of 139,822 kilometers. ठीक है, और उसको अगर माइल्स में देखें तो it is around 86,881 माइल्स, राइट। नाउ अब इसको ऑर्बिट करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, तो इट टेक्स अबाउट 11.9 अर्थ ईयर्स। ठीक है, सो जुपिटर टेक्स अबाउट 11.9 अर्थ ईयर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, ये तो हुई इसकी रेवोल्यूशन की बात। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रोटेशन की। सो इट टेक्स अबाउट 9 अर्थ आवर्स। ठीक है, it takes about 9.8 earth hours. ठीक है, and it is a fastest rotating planet also. That's why it is a fastest rotating planet, not revolving planet. It's a fastest rotating planet. ठीक है, नंबर ऑफ मून्स, इसके मून्स कितने हैं, तो इसके मून्स हैं 79। ठीक है, जिसमें से गायनमेड जो है it is the largest one. ठीक है, so the Ganymede is the largest moon of Jupiter. ठीक है, next is your Saturn. ठीक है, you can see in the picture it's a beautiful planet. ठीक है, it's a ringed planet. ठीक है, इसका रिंग है। ठीक है, that's why it is different from other planets. Also called as the ring jewel of solar system. ठीक है,
इसका फैक्ट के बारे में बात करें तो इट्स अ सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, सो यूनिवर्स, सॉरी, जो सोलर सिस्टम है उसका अगर ऑर्डर, सैटर्न के ऑर्डर की बात करें तो इट्स अ सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर जुपिटर, सैटर्न कम्स व्हेन इट कम्स टू साइज। ठीक है, सो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट फैक्ट इज सैटर्न इज बेस्ट नोन फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग्स। ठीक है, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि इट इज नोन फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग्स। ठीक है, इन रिंग्स की वजह से ही सैटर्न बाकी प्लैनेट से डिस्टिंग्विश हो जाता है। ठीक है, लाइक जुपिटर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जुपिटर की कंपोजिशन है मोर और लेस, सैटर्न की भी वैसी ही कंपोजिशन है, जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, इट इज वेरी abundant in composition। ठीक है, एंड इट इज द लीस्ट डेंस ऑफ द प्लैनेट्स। ठीक है, अब बात करते हैं डायमीटर की। तो सैटर्न का जो डायमीटर है दैट इज अराउंड 120-500 किलोमीटर। ठीक है, इतना सैटर्न का डायमीटर है। ऑर्बिट करने के लिए इसको कितना टाइम लगता है? टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन इट टेक्स अबाउट 29.5 अर्थ ईयर्स। ठीक है, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। डे की बात करते हैं, अगर हम डे की बात करें तो इट टेक्स अबाउट 10.5 अर्थ आवर्स। ठीक है, इट टेक्स अबाउट 10.5 अर्थ आवर्स। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मून्स। सैटर्न के मून्स कितने हैं? ठीक है, सैटर्न हैज गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, जिसमें से आप कुछ नोट डाउन कर सकते हैं, जिसमें से टाइटन, मीमोस, रिया और जेनस। ठीक है, ये कुछ इसके मून्स हैं जो अक्सर आपको अपने करंट अफेयर्स पढ़ते समय या कभी कभार न्यूज़पेपर्स में दिख जाएगा। ठीक है, सो इट हैज गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, so it has got maximum number of moons and it is the second largest planet also। ठीक है, and it is mostly composed of gas, it's a gas giant। next is Uranus। ठीक, यूरेनस के बारे में अगर बात करें, इट इज द टिल्टेड साइडवे प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, एंड इट इज द सेवेंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन। so Uranus comes after Saturn when it comes to order, so it is the seventh planet from the sun and it was the first planet to be discovered using a telescope। okay, so it's a fact, ये पहला ऐसा प्लेनेट था जिसको टेलीस्कोप के जरिए डिस्कवर किया गया था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ वीनस और यूरेनस ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जो वेस्ट टू ईस्ट ना घूम करके ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिए, वीनस और यूरेनस ही दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, ना कि वेस्ट टू ईस्ट। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो कई बार वो आपको किसी फैक्ट में ये चीज ट्रिक कर सकता है। ठीक है, सो रिमेंबर इट। थर्ड इज मीथेन गैस इन यूरेनस एटमॉस्फेयर मेक्स द प्लैनेट अपीयर ग्रीन ब्लू। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीथेन। मीथेन की मात्रा ज्यादा होने के कारण जो आपका यूरेनस है, ठीक है, इट अपीयर्स ग्रीन ब्लू। ठीक है, द प्लैनेट हैज 13 रिंग्स। द प्लैनेट हैज गॉट 13 रिंग्स एंड 27 मून्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लाइक वीनस। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वीनस और यूरेनस ही दो ऐसे प्लैनेट्स हैं। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, Venus and Uranus rotates from to west। ठीक है, तो यही ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं।
unlike other planets which rotates west to east. Remember this. ठीक है. Next is the last planet is Neptune. ठीक है. नेपच्यून की अगर बात करें, इट्स अ स्टॉर्मी जाइंट ब्लू प्लैनेट. ठीक है. ये कुछ फैक्ट्स हैं नेपच्यून के बारे में. सो इट हैज, नेपच्यून इज व्हाट, 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन. नेपच्यून इज 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज ऑन एवरेज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑल्सो. ठीक है. इट इज 8th प्लैनेट एंड ऑल्सो द वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. सो इसका डायमीटर है 49,530 किलोमीटर्स. सो दिस इज द डायमीटर ऑफ नेपच्यून. अगर हम ऑर्बिट की बात करें, इट टेक्स अबाउट 165 अर्थ ईयर्स, राइट. डेज या जिसको आप रोटेशन कहते हैं, तो इट टेक्स अबाउट 19 अर्थ आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, राइट. नंबर ऑफ मून्स की अगर बात करते हैं, नंबर ऑफ मून्स की बात करें तो इट हैज गॉट 14 नंबर ऑफ. ठीक है. सो इट हैज गॉट 14 सैटेलाइट्स. तो कुछ नेपच्यून की जो फेमस सैटेलाइट्स हैं, दीज आर नायड, थैलेसा, ट्राइटन एंड लैरिसा. ठीक है. एंड द फेमस वन इज हिप्पोकैम्प. ठीक है. हिप्पोकैम्प. सो ये कुछ सैटेलाइट्स हैं जो मैंने आपको बताई जो नेपच्यून की है. ठीक है. Neptune is approximately the same size as Uranus. So almost both are similar in size, just like Earth and Venus are twin planets, just like in the same way Neptune and Uranus are almost similar in size. ठीक है. And one more thing, it is also known for its supersonic strong winds. ठीक है. नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में आपको सुपरसोनिक स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिलती हैं. ठीक है. ये भी इसका एक फीचर है. ठीक है. अब बात करते हैं मून की, चंदा मामा की. ठीक है. आपने इसको कहानी में तो बहुत बार पढ़ा होगा. ठीक है. तो इट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. ठीक है. जैसे कि पहले भी मैंने बताया, सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल भी हैं, सैटेलाइट्स नेचुरल भी हैं, लेकिन मून इज द ओनली नेचुरल साइट ऑफ द अर्थ. ठीक है. इस डिस्टेंस की बात करें तो मून इज अप्रोक्सीमेटली 380 to 500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ. यू हैव टू कवर ओनली दिस मच डिस्टेंस एंड यू कैन लैंड ऑन मून. ठीक है. सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर कर लो, आप मून पे पहुंच जाओगे. ठीक है. इट्स डायमीटर इज अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ. ठीक है. लगभग 1/4 मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के. नेक्स्ट फैक्ट इज द मून मूव्स अराउंड अर्थ इन अबाउट 27 डेज. ठीक है. सो इट टेक्स अबाउट 27 डेज टू कंप्लीट टू मूव अराउंड द अर्थ. ठीक है. सो मून को 27 दिन लगते हैं अर्थ के अराउंड मूव करने में. ठीक है. और आपको इसमें दिख रहे होंगे कई सारे क्रेटर्स हैं. ठीक है. सो दिस फोटो हैज बीन टेकन फ्रॉम अ टेलीस्कोप. ठीक है. जैसा कि अभी कई सारे नेशंस कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से इंडिया भी एक है. ठीक है. चंद्रयान 2 भेजा जा चुका है. ठीक है. तो ताकि मून के सरफेस को स्टडी किया जा सके, उसको पढ़ा जा सके. ठीक है. उसके बारे में साइंटिफिक फील्ड में काफी ज्यादा रिसर्च चल रही है. ठीक है. एंड इंडिया भी उसमें इज एट द फोर फ्रंट. ठीक है. चंद्रयान 1 तो भेज चुके हैं. ठीक है. जो सेकंड मिशन है वो है चंद्रयान 2. ठीक है. नेक्स्ट इज ड्वार्फ प्लैनेट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. द रीसेंट कंसेप्ट बट इंपॉर्टेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय ड्वार्फ प्लैनेट्स? ड्वार्फ प्लैनेट से आपका क्या मतलब है? व्हाट इट मीन्स एक्चुअली. ठीक है. तो उसको डिफाइन करने के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्राइटेरिया दिया था. ठीक है. जिसको आप 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं. पहला क्राइटेरिया है ऑर्बिट्स द सन एंड इज नॉट अ मून.
ठीक है, इट डू ऑर्बिट्स द सन बट इट डजंट क्वालिफाई टू बी कॉल्ड एज मून, ठीक है, इट डज ऑर्बिट्स अराउंड द सन बट इट इज नॉट अ मून, ठीक है। Second point is has enough mass to be round. It has got a specific rigid mass. ठीक है, so it has got some identity. ठीक है. And the third is, this is very important, it has not cleared its orbit of debris. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसको प्लैनेट से डिफर कर देता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डॉर्फ प्लैनेट्स, ठीक है, because it doesn't qualify to be called as planets just because of this criteria, because it hasn't cleared its orbit of debris. इस पॉइंट्स के मतलब ये है कि it hasn't got that dominating gravity on its adjacent bodies. जैसे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका एक डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है अपने आसपास की सैटेलाइट्स पे, बट व्हेन इट कम्स टू डॉर्फ प्लैनेट्स ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको डॉर्फ प्लैनेट भी कहा जाता है। अगर हम डॉर्फ प्लैनेट की बारे में बात करें या उसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें, प्लूटो पहले प्लैनेट्स की कैटेगरी में आता था, लेकिन 2006 में इसको उठा के डॉर्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में डाल दिया गया, ठीक है, इट इज नो मोर अ प्लैनेट। अर्लियर इट वाज नोन एज 9th प्लैनेट, ठीक है, नाउ वी गॉट 8 प्लैनेट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इरिस, ठीक है, होम्या, मेकमेक एंड सिरिस, ठीक है, is the largest, Ceres is the largest one, largest dwarf planet, ठीक है। So ये basic definition है dwarf planets की, but you need to mention these points if somebody asks you to define dwarf planets in your solar system, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली टर्म है गैलेक्सी, ठीक है। गैलेक्सी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय गैलेक्सी? सो दिस इज अ पिक्चर विच आई हैव गिवन टू यू, तो आप देख पा रहे होंगे इट्स अ स्पाइरल शेप्ड, ठीक है, इट्स अ स्पाइरल शेप्ड। सो आर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा, अंग्रेजी में मिल्की वे कहा जाता है, ठीक है। सो आर गैलेक्सी इज मिल्की वे, जिसे हम हिंदी में आकाश गंगा भी कहते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय गैलेक्सी, व्हाट इट्स बेसिक डेफिनेशन? सो इट इज बेसिकली अ वास्ट कॉन्स्टलेशन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, डस्ट, हाइड्रोजन एंड गैस, ठीक है। मार्क इट, इट इज अ वास्ट constellation of stars, dust, hydrogen, gas, ठीक है। So it has got stars, dust, hydrogen and gas, and they are scattered and isolated in space, ठीक है। And as I told you, they exist millions of galaxies which we don't know till now, ठीक है। कई सारी गैलेक्सीज हैं जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और कई सारी यूनिवर्स हैं, ऐसा जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं, ठीक है, उनका ये मानना है, ठीक है, जो कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हैं या स्पेस रिसर्च में काम कर रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि कई सारी गैलेक्सीज हैं जो अभी तक हमें पता ही नहीं है, ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिल्की वे इज आवर गैलेक्सी, ठीक है, ठीक है, एंड आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। एंड समबडी आस्क्स यू हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ मिल्की वे, ठीक है, एंड इट इज अ स्पाइरल टाइप ऑफ गैलेक्सी। तो गैलेक्सीज कई तरह की होती हैं, ठीक है, एलिप्टिकल होती हैं, elongated होती हैं, स्पाइरल होती हैं, ठीक है। सो आर इज स्पाइरल टाइप ऑफ गैलेक्सी, एंड देयर इज वन another galaxy which is called as Andromeda, ठीक है, it's an another type of galaxy which is nearest to Milky Way, ठीक है। Andromeda is an other important galaxy closest to the Milky Way, right? So this was all about galaxy, ठीक है। आपको गैलेक्सी के बारे में इतना ही पता होना चाहिए फॉर स्टार्ट, ठीक है। हाँ, जो लोग स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए एस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर बनना चाहते हैं, ठीक है, या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो दे कैन स्टडी अबाउट इट,
ठीक है, they can do some research and reading on the internet, ठीक है, but for your basic NCRTs, for your basic concepts when it comes to NCRTs or competitive exams, this much is enough, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सलेशंस की, ठीक है, कॉन्सलेशंस की बात करते हैं। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है, सो दिस इज बेसिकली अ पिक्चर ऑफ अ कॉन्सलेशन, ठीक है, एंड अ वेरी फेमस कॉन्सलेशन इज ग्रेट बियर, ठीक है, सप्तऋषि भी जिसे कहा जाता है, ठीक है, अर्सा माइनर एंड अर्सा मेजर, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिकली अ कॉन्सलेशन, ठीक है, एंड व्हाट अ कॉन्सलेशन इज, अ कॉन्सलेशन इज इट इज अरेंजमेंट ऑफ द स्टार्स, ठीक है, एक डेफिनेट पैटर्न्स में स्टार्स जो हैं अरेंज होते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक डेफिनेट पैटर्न में स्टार्स जो हैं अरेंज्ड हैं, ठीक है। So the definition says it appears in form of closed groups, ठीक है, and recognizable shapes. So in a recognized shapes and patterns, it is a group, ठीक है, जिसका एक डेफिनेट पैटर्न है, एक डेफिनेट डिजाइन है, ठीक है, उसको हम कॉन्सलेशन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने आपको बताया, बिग डिपर पार्ट ऑफ अर्सा मेजर, ओरियन ओरियन ड्रैको, ठीक है। सो ये तो होगी बेसिक डेफिनेशन कॉन्सलेशंस की, ठीक है, कि कॉन्सलेशन से हमारा मतलब क्या है। अब बात करते हैं नॉर्थ स्टार की, जिसको पोलारिस भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्थ स्टार क्यों कहा जाता है? नॉर्थ स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है, दैट्स वाई इसको नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। और जितने भी हाइकर्स एक्सप्लोरर्स होते हैं, या कभी आप मिलिट्री में जाते हैं, यू नो फॉर्चुनेट इनफ टू बी पार्ट ऑफ आर्मी और समथिंग लाइक दैट, तो आपको वो स्टार गेजिंग के थ्रू द विद द हेल्प ऑफ स्टार्स दे हेल्प यू टू फाइंड द डायरेक्शन, ठीक है, कि स्टार से आप डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, ठीक है। ऑल्दो उसमें और कई सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, बट आपको हर कंडीशन के लिए वहां ग्रूम किया जाता है, इसलिए ये भी एक मेथड है डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट नॉर्थ स्टार, सो नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉर्थ स्टार, जिसको हम ध्रुव तारा भी कहते हैं, ठीक है। दादाजी ने आपको कई बार बताया होगा ध्रुव तारा, या कभी आई डोंट नो अबाउट यू, बट हम लोग छत पे सोते थे अपने बचपन में, ठीक है, एंड वी यूज टू गेज एट द स्काई, ठीक है, तो उसमें आपको कई बार कई तरह के पैटर्न्स दिखते थे और वो कॉन्सलेशंस होते थे, ठीक है, कोई बो शेप में होता था, ठीक है, और कई बार हम अपने पैटर्न्स भी उसमें मिल जाते हैं, ठीक है, देख देख लेते हैं उन पैटर्न्स को, ठीक है। सो कमिंग टू द नॉर्थ स्टार, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, ठीक है, एक फिक्स पोजीशन में आपको ये स्काई पे दिखेगा जो आपका नॉर्थ स्टार है, ठीक है, और इसको पोलरिस भी कहते हैं, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, ठीक है, हम पोल स्टार की पोजीशन जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है उसके जरिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे? ऐसे, सो आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है। सो दिस इज योर बिग डीपर, ठीक है, ठीक है। सो कभी भी जब आपको नॉर्थ स्टार की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो आपने इन पैटर्न में ये जो दो स्टार्स हैं, ठीक है, इन दो स्टार्स को देखते हुए जो एक सीधी लकीर जा रही है टिल द ब्राइटेस्ट स्टार, ठीक है, जो उन तीनों को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, और जो एक्सट्रीम एंड पे होगा दैट विल बी योर
नॉर्थ स्टार, ठीक है, दैट विल बी योर नॉर्थ। ये दो स्टार्स थे, उन दोनों स्टार्स के थ्रू जो लाइन जा रही है अप टू द ब्राइटेस्ट स्टार, ठीक है, द स्ट्रेट लाइन विच आर पासिंग थ्रू दो स्टार्स, ठीक है, एंड इट इज गोइंग अप टू द नॉर्थ स्टार, ठीक है। दिस इज हाउ यू डिटर्मिन द पोजिशन ऑफ नॉर्थ स्टार, ठीक है, जिसको आप पोल स्टार बोलते हैं, ठीक है। और इसके जरिए आपको डायरेक्शंस का पता चल जाएगा। जब आपको नॉर्थ का पता लग गया, आपको वेस्ट का पता लग जाएगा, ईस्ट का पता लग जाएगा और साउथ का पता लग जाएगा, ठीक है। सो ये जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं यू आर एबल टू फाइंड आउट, ठीक है। अब हम मूव करते हैं एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। एस्ट्रॉइड इज ऑल्सो अ सेलेशियल बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी रिसेंट न्यूज में करंट अफेयर्स में होगा, शायद बहुत लोगों ने पढ़ा भी उसके बारे में, डार्ट मिशन एक लॉन्च हुआ था, ठीक है, एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय नासा। What was it about? It was about the asteroid smashing mission. ठीक है? So the DART mission was asteroid smashing mission. So basically it was to test our ability and to detect and destroy the lethal asteroids. ठीक है? Which can cause a catastrophe on Earth. ठीक है? वैसे उन एस्ट्रॉइड्स को खत्म करना या डीऑर्बिट करना जो अर्थ के लिए लीथल हो सकते हैं, ठीक है, दे कैन कॉज अ डिजास्टर, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए डार्ट मिशन नासा के थ्रू लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके बारे में आप गूगल करिएगा। एंड टेल मी अबाउट द मून, जिस द एस्ट्रॉइड जो डिस्ट्रॉय किया गया, ठीक है, थ्रू दिस मिशन, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एन एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। सो इट इज बेसिकली अ रेजिडुअल रेमिनेंस, ठीक है, जो कभी टाइम में पहले कभी प्लैनेट्स के तौर पे एग्जिस्ट करते थे पहले टाइम में, उनके जो रेमिनेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली व्हाट द रॉकी रेमिनेंट्स, the rocky remnants of the leftover planets, ठीक है। so these are basically the residual of those planets, ठीक है। these are mostly found where in the Kuiper belt, ठीक है, उस बेल्ट को क्यूपर बेल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। एंड इट इज फाउंड दे आर लोकेटेड इन between Mars and Jupiter. This belt is located between the orbits of Mars and Jupiter, ठीक है। अगर हम साइज की बात करें एस्ट्रॉइड्स की, सो बहुत बड़े बड़े साइजेस से होते हुए दे कैन बी अप टू 33 फीट और 10 मीटर्स, ठीक है। सो 525 किलोमीटर से लेकर 10 मीटर तक के इनके साइजेस होते हैं। दिस इज द रेंज जिसमें एस्ट्रॉइड्स वेरी करते हैं, ठीक है। सो ये एक एस्ट्रॉइड की पिक्चर है, ठीक है, जस्ट टू कन्वे यू, टू गिव यू एन आइडिया कि व्हाट इज एस्ट्रॉइड, व्हाट एस्ट्रॉइड लुक्स लाइक, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटेराइड्स, ठीक है। ये बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, आपकी बेसिक एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीजें गिवन है, ठीक है, लेकिन हम उसको प्रॉपरली स्किम नहीं करते, प्रॉपरली देखते नहीं हैं, ठीक है, और बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं इनमें, और उसकी वजह से कई बार हमें एग्जामिनर के हाथों ग्रिल होना पड़ता है, ठीक है। सो बहुत बेसिक चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि अब मीटराइड्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो मीटराइड्स की अगर हम बात करें तो साइज वाइज अगर देखा जाए तो एस्ट्रॉइड से बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और उसमें दो कैटेगरीज आती हैं मीटराइड्स में। एक तो मीटियोर, जिसको आप टूटता तारा कहते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन इज अ मीटियोर इज डिफाइंड एज अ लाइट फिनोमिना, ठीक है, विच रिजल्ट्स व्हेन अ मीटरॉइड एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। होता क्या है कि जब कोई भी फॉरेन बॉडी या मीटरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने की कोशिश करता है,
ठीक है। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उस पर इतना स्ट्रेस डालता है कि वो उस फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करता है। उस फ्रिक्शन की वजह से वो उस मैग्नीट्यूड को संभाल नहीं पाता एंड इट बर्न्स डाउन। ठीक है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एशेस। ठीक है, बट समटाइम्स होता क्या है कि ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ और ड्यू टू इट्स एनॉर्मस साइज दैट मीटरॉइड इज एबल टू सर्वाइव द पैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, उस सिनेरियो में वो बॉडीज अर्थ पर पहुंच जाती हैं। ठीक है, एंड समटाइम्स दे क्रिएट अ इम्पैक्ट, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लोनर लेक इन महाराष्ट्र। सो जस्ट गूगल इट वेयर इट इज लोकेटेड, लोनर लेक कहां पे है। ठीक है, महाराष्ट्र के किस हिस्से में है देखिए। तो इट वॉज क्रिएटेड बाय अ म्यूटराइट हिट हुआ था एंड इट्स अ ब्यूटिफुल वाटर बॉडी। ठीक है, यू कैन गूगल द पिक्चर्स। ठीक है, सो लोनर लेक, लोनर लेक। ठीक है, इसके बारे में देखिएगा। सो दिस वॉज अ म्यूटेराइट क्रिएटेड बाय अ म्यूटेराइट इम्पैक्ट। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, म्यूटेराइट इज विच सर्वाइव्स द पैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, विच इज एबल टू सर्वाइव दैट। यही एक इन दोनों में डिफरेंस है, म्यूटेयर और म्यूटेराइट। ठीक है, सो ये सब कैटेगरीज थी म्यूटेराइट्स की। दिस इज हाउ अ मीटियोर लुक्स लाइक। ठीक है, टूटता तारा आपने कई बार देखा होगा, आपको पिक्चर्स में कई बार दिखा होगा। ठीक है, आप लोग विश मांगते हैं, टूटता तारा जा रहा है, विश मांगो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज मीटियोर, उसको मीटियोर बोलते हैं। द एग्जैक्ट टर्म इज मीटियोर। ठीक है, and these all sources are used by scientists to study the interior। ठीक है, कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि किस तरीके से अर्थ की उत्पत्ति हुई थी, किस तरीके से हमारे प्लैनेट्स बने थे। ठीक है, ये जो सोर्सेज हैं ये एक बहुत बड़ा एविडेंसेस हैं उन सब चीजों को जानने के लिए। ठीक है, कि हाउ आर यूनिवर्स हैज फॉर्म्ड। ठीक है, तो उनको स्टडी किया जाता है, उनकी बॉडीज को स्टडी किया जाता है। ठीक है, जो अर्थ तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, और इसकी वजह से हम जो अर्थ के इंटीरियर है उसके बारे में भी बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। ठीक है, जब आप आगे की एनसीईआरटीज में पढ़ेंगे, सो इट इज वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द सोर्सेज टू स्टडी अर्थ ऑल्सो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस की बारी। ठीक है, सो आज हमने डिस्कस किया अभी तक सोलर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सोलर सिस्टम की कंपोजिशन क्या है, वो कैसे ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, उसके डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में आई हैव डिस्कस विद यू। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन। कौन सा प्लैनेट अर्थ का ट्विन कहलाया जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इट इज वीनस। ठीक है, सो इसका आंसर होगा वीनस। ठीक है, द प्लैनेट विच इज नोन एज अर्थ ट्विन इज वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दीज ऑल आर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, जब आप उनको रीड करेंगे तो अटेम्प्ट देम। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ठीक है, सो द थर्ड प्लैनेट, द फर्स्ट प्लैनेट इज मर्करी, वीनस, थर्ड इज अर्थ, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, सो द राइट आंसर इज अर्थ। ठीक है, दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट इज, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर और एलोंगेटेड पाथ। किस पाथ में सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, दे ऑल मूव इन एलोंगेटेड पाथ। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज
द पोल स्टार इंडिकेट्स विच डायरेक्शन, टूवर्ड्स विच डायरेक्शन, so your pole star indicates the north direction. Okay, that's why it is called as north star. We just discussed about it. ठीक है. So next is asteroids are found between the orbits of. ठीक है, एस्ट्रॉइड्स कौन सी बेल्ट में मिलते हैं? ठीक है, so asteroids are found between Saturn and Jupiter, Mars and Jupiter, या Earth and Mars. So its answer, right answer is Mars and Jupiter. ठीक है, क्लियर? बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें. ठीक है, आगे बढ़े. हाँ, ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए मैंने. ठीक है, आपने बताना है कि इसमें राइट स्टेटमेंट क्या है. ठीक है, जैसे कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. अभी तक हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कहते हैं. तो ये 100% ये जो स्टेटमेंट है वो सही है. ठीक है, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल प्लैनेट्स emit light. Is this right or wrong? This statement is wrong. ठीक है, ये false statement है. मैंने आपको पहले भी बताया जो planets हैं they don't emit light, they don't have heat and light of their own. कौन सी ऐसी celestial bodies हैं which have got light and heat of their own? These are called stars. जैसे कि हम sun. ठीक है, तो sun has got heat of its own. ठीक है, so this statement is wrong. ठीक है, नेक्स्ट इज अर्थ इज नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. अर्थ इज नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. सो मरकरी हमने पढ़ा था, मरकरी इज द नियरेस्ट क्लोजेस्ट टू द सन. तो ये भी स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, लास्ट इज नन ऑफ द अबव. ठीक है, सो इस स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता. सो only one statement is right, that is all planets revolve around the sun. ठीक है, next question is you have to arrange these planets in the ascending order based on their orbital period. इनके orbital period पे आपको इनको अरेंज करना है. ठीक है, एक लॉ होता है कैपिलर्स लॉ. उस लॉ के मुताबिक जैसे जैसे प्लैनेट का डिस्टेंस सन से बढ़ता चला जाएगा उसको उतना ही ज्यादा पाथ को ट्रेवर्स करना पड़ता है. ठीक है, जैसे मरकरी को छोटा पाथ कवर करना पड़ेगा, वीनस को उससे बड़ा, अर्थ को उससे बड़ा, रिलेटिवली वो चीज बढ़ती चली जाएगी. ये कैपिलर्स लॉ ने एक्सप्लेन किया था. ठीक है, यू डोंट नीड टू गेट इनटू दैट द डिटेल्स ऑफ दैट लॉ. हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है यू कैन रीड अबाउट दैट. ठीक है, उस लॉ के मुताबिक अगर हम इस ऑर्डर में चलें तो इसका आंसर क्या बनता है? सबसे पहले इन्होंने दे रखा है वीनस, फिर दे रखा है जुपिटर, अर्थ, मार्स. ठीक है, लेकिन अब इसे हमें बोला है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो आपका सबसे पहले प्लेनेट कौन सा आएगा? आपका सबसे पहले प्लेनेट आ जाएगा वीनस. ठीक है, दैट इज 1. वीनस के बाद आपका कौन सा आ जाएगा? अर्थ. अर्थ के बाद मार्स. मार्स के बाद जुपिटर. ठीक है, तो ये इनकी ऑर्बिटल पीरियड इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता चला जाएगा. सबसे ज्यादा ऑर्बिटल पीरियड इसका होगा. ठीक है, राइट. नेक्स्ट, वेरी इजी. विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है? ड्यू टू इट्स रॉक आयरन ऑक्साइड्स. ठीक है, तो आपसे मैंने डिस्कस किया था, इसका आंसर है मार्स.
मास विल बी रेड प्लैनेट, दैट्स वाई मंगल ग्रह इसको तभी रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोलर इक्लिप्स, एंड आई ऑल्सो विल डिस्कस विद यू लूनर इक्लिप्स। ये दोनों कौन कौन से क्या फिनोमिना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है तो सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स क्या होता है? सूर्य ग्रहण जिसे कहा जाता है। तो सोलर एक्लिप्स कब होता है? बेसिकली इट ऑकर्स ऑन न्यू मून। न्यू मून डे जब होगा तब आपका सोलर एक्लिप्स होता है। और होता क्या है कि मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ, राइट? ठीक है, मून क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से जो मून की शेडो है वो सन पे प्रोजेक्ट होती है। ठीक है, और हमें अर्थ से ऐसे दिखता है कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लग चुका है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन भी इसी पे है, सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, मून इज एट द राइट एंगल ऑफ द अर्थ, या सन कम्स बिटवीन मून एंड अर्थ, या मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, दैट टू ऑन न्यू मून डे। ठीक है, दैट टू ऑन न्यू मून डे सोलर इक्लिप्स विल अकर। लेकिन मून का साइज इन कंपैरिजन टू सन बहुत ही छोटा है, तो बहुत इनसिग्निफिकेंट इक्लिप्स लगता है। ठीक है, एंड इट इज डैमेजिंग टू आइज। साइंटिस्ट कहते हैं कि इसको आप नेकेड आइज से मत देखें, और कई बार आप न्यूज चैनल्स पे भी देखते होंगे कि वो साथ साथ में इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, बिकॉज उस समय हार्मफुल रेज निकल रही होती हैं जो आपकी आइज को डैमेज कर सकती है। ठीक है, लूनर इक्लिप्स की बात करते हैं। लूनर इक्लिप्स कब होगा? जब अर्थ आ जाएगी सन और मून के बीच में। ठीक है, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून। ठीक है, देयर बाय ब्लॉकिंग द सन्स लाइट। ठीक है, whenever the earth comes in between the sun and the moon, lunar eclipse will occur। ठीक है, creating a shadow on the moon। ठीक है, और ये कब होता है? this occurs during a full moon। ठीक है, when moon is on the opposite side of the earth from the sun, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, full moon, this is how a lunar eclipse will look like। this is earth, this is sun। ठीक है, so the earth has come between the sun and moon। ठीक है, so अर्थ की शेडो, ठीक है, अर्थ की शेडो मून को पूरे तरीके से क्लिप्स कर लेती है। ठीक है, so during a lunar eclipse the moon can appear reddish in color। ठीक है, लूनर इक्लिप्स के वक्त आप इसको ऑब्जर्व करना, जब भी नेक्स्ट टाइम कभी लूनर इक्लिप्स का न्यूज आता है उसको क्लोजली वॉच करना। कभी कभार क्या होता है कि आपको ब्लड मून दिखेगा। ठीक है, दिस प्रोसेस अकर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि रेड लाइट जो होती है उस समय रिफ्रैक्ट हो रही होती है, इसकी वजह से। ठीक है, जो सनलाइट का रेड कंपोनेंट है, ठीक है, रेड कंपोनेंट रिफ्लेक्ट होने की वजह से जो आपका मून है वो हमें ब्लड की तरह लाल, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लड मून। इट अपीयर्स रेडिश इन कलर। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, so as I explained, due to the earth's atmosphere refracting sunlight around the planet। ठीक है, due to this phenomena moon appears reddish to us। ठीक है, it appears red in color। so next statement is lunar eclipses can be seen from anywhere on the night side of the earth। ठीक है, जहां पे भी अर्थ पे रात है वहां से आप उस समय लूनर इक्लिप्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है,
सिंस द अर्थ शेडो इज मच लार्जर देन द मून, तो आपका जो उसका इम्पैक्ट है या उसकी जो विजिबिलिटी है वो इन कंपैरिजन टू सोलर इक्लिप्स ज़्यादा होगी। ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से इक्लिप्स दिखेगा व्हेन इट कम्स टू सोलर इक्लिप्स, जिसमें वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, बिकॉज अनलाइक सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्सेस आर सेफ टू व्यू विद द नेक्ड आई। यस, दिस इज ऑल्सो, यू नो, इट इज मच सेफर टू वॉच. Lunar eclipse is much safer to watch than solar eclipse. So these are some differences between lunar eclipse and solar eclipse. ठीक है, so that will be all for this video. In the coming video, I'll discuss with you the globe, latitudes. I'll try to make a separate video on that, and we'll discuss what is globe, what is latitudes, what is longitude, what are their different properties, how are they different, how significant they are, उनका कहाँ यूज होता है. सो उस वीडियो में, आने वाली अगली वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड के बारे में पूरे तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए. ठीक है, एंड वन मोर थिंग गाइस, एज अ जोग्राफर, if you're aspiring to be a geographer, and if you have an interest towards geography, my personal suggestion to you is get an atlas, get used to it, start playing with it. ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी आप एटलस के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैप्स. ठीक है, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद मैप्स, एज वी प्रोग्रेस इन द कोर्स यू विल नॉट एबल टू मैच अप, because I'll start pointing out some places, I'll start naming some places, and you will be like कि ये क्या सर ने बोल दिया. ठीक है, सो इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप कोई भी, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, विच इज मस्ट, whether you're preparing for competitors or not, it doesn't matter, you must read newspaper. ठीक है, start reading it if you're not reading it. so न्यूज़पेपर में जब भी आप कोई जगह देखते हैं, ठीक है, तो ट्राई टू गूगल इट. ठीक है, कहाँ है उसको एटलस में देखो जाके. ठीक है, उससे आपको उसके आसपास की जगहें पता लगना शुरू हो जाएंगी. ठीक है, सो आप एक काम कर रहे हैं, उससे आपके कितने काम बन रहे हैं. ठीक है, सो ट्राई टू डू दैट. बाकी जितना हमसे हो पाएगा, क्रैक अकेडमी से होएगा, विल प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल डिस्कस विद यू globes, latitude and longitude. Thank you. That will be all for now.